ഇവിടാണ്ട് ആരോ സൂം ഹലോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഹലോ ഹലോ സാറേ ഇപ്പൊ അവര് വരണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ലൈനിലിരിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Good afternoon to everyone, whoever has logged in and is going to attend this webinar with us at HCG Cancer Center, Ahmedabad. I'm Indulekha Menon, and I would like to invite Shri Murli S. Nair to give a small introduction about Dr. Swati Shah, our surgical oncologist at HCG Cancer Center. Over to Murli uncle. Good evening to all of you. Myself, Murli S. Nair. I request all of you to kindly start the audio as well as video so that we can all hear. So I myself introduce first myself Murli Nair, General Secretary of Akhila Gujarat Nair Association for Service Agnes. My voice? Everybody can hear my name? Okay, so I, on behalf of Agnes, I heartily welcome all of you in this webinar. We have organizing this webinar
with the support of Nair Seva Samaj Sabarmati and in association with the HCG in Cancer Hospital, Ahmedabad. I appreciate one of our Sabarmati Youth Wing convener, Indulekha Menon, for organizing such a wonderful seminar on the occasion of International Women's Day. We have all just celebrated Women's Day throughout the world. In Gujarat also, in many associations of Agnas, we have celebrated Women's Day in a grand style. So we, with the blessing and support of all the group association, member association, and the support of NSS Sabarmati, I especially express my sincere appreciation NSS President Pradap Kumar and Secretary Vinod Nair for bringing out such a wonderful seminar for our sisters and daughters. On this seminar, we have very experienced and well-talented doctor who is in practice since 2011, Dr. Swati Shah. She is a specialist in gynec cancer and uro cancer surgery. She is a very eminent and experienced doctor in HCG International and made many efforts to rescue many patients throughout the country. She is very familiar with all the modern technology and medical treatment equipments, and she is very honest and sincere in her profession. So she is now going to take the seminar, webinar for our ladies across Gujarat as well as many parts of the country. Dr. Swati Shah has got many prestigious awards in the medical field and very conversant with this cancer and uro surgery operation, etc., etc. So we are very happy and very sincerely welcome Dr. Swati Shah to lead the webinar, and I wish all success, and we can make many more such events in future with the support of HCG Hospital and NSS Sabarmati. I welcome all of you to take in part of this wonderful seminar, and I request all of you, to all the participants, to interact with the Dr. Swati Shah and take the advantage of this very effective manner. I wish all success, and I thank you for allowing me to have a few words with all of you, and have a nice day ahead, and wish you all success in the webinar. Thank you. Thank you. Now you can start as per the agenda. I request Indulekha and Pradap Kumar to please continue with the webinar. Okay, we will tell. Okay. Please, Indulekha, to head over to this program to Dr. Hindu Shah. Yeah, that. Yeah. A very good afternoon to all of you. Now, today, I will like to discuss few points regarding cancer awareness. Why should we be cancer aware? Just a second. Is it visible? Should we be aware about female cancers? This is today's topic. I am Dr. Swati Shah. I'm a surgical oncologist. कैंसर के बारे में हम लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं. जिनको सुनना पड़ता है वो एक दुखद बात होती है, पर अगर हम इसके बारे में जाने तो उससे कई फायदे हो सकते हैं. उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहूंगी. आई लाइक टू डिस्कस अबाउट द फीमेल कैंसर्स. अगर मैं बात करूं अवेयरनेस वर्सेस इग्नोरेंस, हमें कई बार लगता है शायद कैंसर के बारे में ना ही जाने तो अच्छा है, उसके बारे में इग्नोरेंट रहे तो भी चले, क्योंकि हम उसके बारे में जानेंगे फिर पता चलेगा कि कैंसर है, डॉक्टर कुछ करेंगे
उससे अच्छा है कि हमारे को ना ही पता चले कि कुछ है। पर उसके सामने अगर मैं बोलूं कि अगर हमें अवेयर है तो उससे हमें कैंसर के प्रति लड़ने में 3 फायदे होते हैं। एक तो कैंसर का तो इंसिडेंस काफी ज्यादा ही है, तो उससे लड़ने के लिए हमें उसके बारे में पता होना जरूरी है, तभी हम उसके खिलाफ लड़ पाएंगे। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, अगर हम उसको पहले पकड़ लेते हैं, अगर हम कैंसर के बारे में जानते हैं, उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट काफी अच्छे से हो सकता है। और तीसरी बात, सर्वाइवल भी उसी बात पे डिपेंड करता है कि हम कैंसर को किस स्टेज में पकड़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम कैंसर को पहले, कैंसर के बारे में जानते हैं, तो हमें उससे काफी फायदा हो सकता है। कैंसर क्या है? कैंसर इज जस्ट एन एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। कि नॉर्मल सेल्स जो बॉडी के होते हैं वो एब्नॉर्मली बढ़ने चालू हो जाते हैं। नॉर्मली जिस रेट पे उन्हें बढ़ना चाहिए उसकी जगह वो ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं, उसे हम कैंसर बोलते हैं। अभी जस्ट मेरे साथ जितने लोग हैं मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल्स? प्लीज जो भी सुन रहे हैं तो एक दो लोग अपना आंसर बोल सकते हैं। सर, Breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर। सर आप क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट, यस, करेक्ट। ये बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया में भी, वर्ल्ड ओवर तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है ही, इंडिया में भी करीब 1.45 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के मिलते हैं। पर कभी भी आएगा तो करना, आज तो नहीं होगा। प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। हाँ, यस। पर उसके सामने अगर मैं साथ में जो सेकंड कॉमन कैंसर है जो कि सर्वाइकल कैंसर है, यानी कि यूट्रस के मुंह का कैंसर जो होता है, उसका रेट भी इंडिया में काफी ज्यादा है। वो सेकंड मोस्ट कॉमन नंबर पे आता है। पर उसी के सामने उससे होने वाली डेथ्स को कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा है। उसके इंसिडेंस के सामने उसकी डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा है। सर्विक्स होता क्या है? सर्विक्स, ये जो गर्भाशय होता है उसके नीचे का जो मुख होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। और इंडिया में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो काफी कॉमन है। तो उससे लड़ने के लिए, सर्विक्स कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास 3 हथियार हैं जिससे हम उससे अच्छे से लड़ सकते हैं। तो देयर आर 3 टूल्स टू फाइट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। वन इज, वो एक वायरस के कारण होता है तो उसी को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट द HPV इन्फेक्शन। सेकेंड इज पैप स्मीयर से स्क्रीनिंग करना। एंड थर्ड इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर हम जस्ट थोड़ी देर के लिए फोकस करें कि ये कैंसर होता क्यों है। ये कैंसर होने का कारण, सर्विक्स का जो कैंसर होता है, पहले जो नॉर्मल सर्विक्स है उसमें HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। वो भी एक कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन हो जाता है। और वो इन्फेक्शन जब काफी टाइम तक परसिस्ट करता है तो उससे पहले एक प्री कैंसर की स्टेज आती है और फिर बाद में वो कैंसर का रूप धारण करता है। तो ये जो बीच की स्टेज है ये 10-15 साल लगाती है। तो हमारे पास 10-15 साल होते हैं ये कैंसर को पहले ही, होने से पहले ही रोकने के लिए। तो एक तो हम उस वायरस को होने से रोकें, दूसरा उसको पहले वाली स्टेज में पकड़ लें तो हम कैंसर को होने से भी रोक सकते हैं। तो एक ऐसा कैंसर जो कि इंडिया में इतना कॉमन है और डेथ का इतना बड़ा कारण है, उसको हम होने से रोक सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन अवेलेबल है जो कि 9 से 12 साल की लड़कियों को यूजुअली लगाई जाती है। वो थोड़े टाइम बाद भी लगा सकते हैं, इवन 25 साल की, 30 साल की लेडीज को भी लगाएं तो उसका एफिकेसी मिलता है। अगर यंग गर्ल्स में लगाई जाती है तो उसकी, स्कूल गर्ल्स में लगाई जाती है तो एफिकेसी अप टू 95% होती है। बाद में लगाते हैं तो एफिकेसी 70-80% होती है, पर फिर भी फायदा होता है। तो ये कैंसर के अगेंस्ट में ऑलरेडी वैक्सीन एक अवेलेबल है। हम कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए इतने उत्साहित हैं, वो बात सही है, पर एक ऐसा कैंसर जिसका डेथ रेट ऑलरेडी कोरोना के बराबर है, उसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक वैक्सीन है जो कि लड़कियों को लगाई जानी चाहिए। इसके 3 डोजेस होते हैं और वो इजीली अवेलेबल होती है। सेकेंड थिंग इज पैप स्मीयर, जो कि हर लेडी को 21 ईयर्स से हर 3-3 साल में एक नॉर्मल टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो उसमें एक साइड पे कैंसर का पिक्चर है और दूसरी साइड पे नॉर्मल पिक्चर है। तो ये जो नॉर्मल पिक्चर होता है जिसमें बाद में कैंसर हो सकता है, उसको टेस्ट करके भी पता लगाया जा सकता है कि उसमें प्री कैंसर स्टेज है कि नहीं। अगर कुछ चेंजेस हैं जो बाद में कैंसर बन सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो कैंसर को होने से पहले
रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है और उसको होने से पहले की स्टेज में पकड़ा और रोका जा सकता है। इसे एक सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं, जो कि हेल्थ चेकअप के दौरान सबको कराना चाहिए। ये सिर्फ लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि सारे मेल मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। और इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर के नंबर्स इतने ज्यादा हैं, उससे डेथ रेट्स इतनी ज्यादा हैं, उसको कंट्रोल करने में मदद करें। थर्ड थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि किसी को, लेडीज क्या है अपने काम में बिजी रहती हैं, दूसरा शर्माती है, तो उस चक्कर में ये सब जो एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उसको रिपोर्ट करती नहीं है, उनके बारे में चुप रहती है, किसी को बोलती नहीं है। आपकी जो मदर होगी, कोई सिस्टर हो या फ्रेंड हो, उनको ये सब चीजें किसी को बोलने में काफी शर्म महसूस हो सकती है, या फिर बिजी होने के कारण वो नहीं बोलते हैं। तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, नीचे पेट में दर्द होना, कोई गांठ महसूस होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए। मोस्टली वो कैंसर नहीं होगी, 90 to 95% टाइम्स वो इन्फेक्शन ही होने वाली है, पर उनमें से कुछ कैंसर हो सकते हैं। तो इसीलिए उसका सही तरीके से डायग्नोसिस यानी कि कुछ टेस्ट किए जाने चाहिए और ट्रीटमेंट करानी चाहिए, क्योंकि वो एक क्योरेबल स्टेट ट्रीटमेंट होती है। तो ये मैं जस्ट समराइज करते हुए सर्वाइकल कैंसर के बारे में 3 ही चीजें बोलना चाहूंगी। एक, हमारा जो पहला हथियार है वो है वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेलेबल है। दूसरा, पैप स्मीयर, यानी कि कैंसर को पहले की स्टेज यानी कि प्री कैंसर स्टेज में पकड़ने के लिए एक टेस्ट अवेलेबल है, और उससे अगर किसी को पाया जाए तो ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तीसरा है फील फ्री टू रिपोर्ट सिम्टम्स इफ यू हैव एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर। कोई भी सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर के तरफ, यानी कि नॉर्मल एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, जो वो नजरअंदाज कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो डू नॉट नेग्लेक्ट द सिम्टम्स, रिपोर्ट टू योर नियरेस्ट डॉक्टर। नाउ कमिंग टू दी अदर कैंसर्स, अदर कैंसर में जो है यूट्रस का जो कैंसर होता है, उसकी सर्जरी के लिए लेटेस्ट जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। यूट्रस कैंसर के लिए जो सर्जरी की जाती है, कैंसर सर्जरी का मतलब होता था पहले कि चीरा लगा के, बड़ा चीरा लगा के यूट्रस कैंसर की सर्जरी की जाती थी। उसके सामने आजकल ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी से की जाती है। रोबोटिक सर्जरी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि कहीं भी वर्ल्ड ओवर कैंसर सर्जरी के लिए अवेलेबल होती है। तो यूट्रस के कैंसर के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहा जाता है। सॉरी, ये एक वीडियो है जस्ट रोबोटिक रेडिकल हिस्टेक्टमी का। रोबोटिक सर्जरी If you are a female and have certain रोबोटिक सर्जरी जो होती है उसमें पहले एक छेद से ही ऑपरेशन किया जाता है। 4-5 छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें पहले दूरबीन अंदर डाली जाती है, पेट में हवा भरी जाती है और फिर उसमें एक कैमरा डाला जाता है। रोबोटिक सर्जरी का जो कैमरा होता है वो 3D इमेज दिखाता है, हाई डेफिनेशन इमेज होता है और 10 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है। तो उससे हमें ऑपरेट करने में काफी हेल्प मिलती है। तो सर्जरी इज मोर प्रिसाइज। तो जो कैंसर सर्जरी जिस प्रिसीजन से की जानी चाहिए उस प्रिसीजन से वो हो पाती है। उसमें साथ में जो टूल्स डाले जाते हैं वो भी स्पेशल किस्म के होते हैं। ये जो टूल्स हैं उसमें 2 जॉइंट होते हैं और वो उस पर पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं। ये मशीन, रोबोटिक मशीन खुद ऑपरेशन नहीं करती है। हम सर्जन जो बैठ के यहाँ पे करेंगे, इसमें से पेट का पूरा विजन हमें अंदर मिलता है और जब जो हम यहाँ पे हाथ से परफॉर्म करेंगे वो वहाँ ट्रांसमिट होगा। तो ये ऑटोमेटिक नहीं होती है कि अपने आप चले, हम जो काम करेंगे वहां पे वो अंदर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है पूरे प्रिसीजन के साथ। तो एक तरह से वो हमें हेल्प करता है। इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो हमें किसी भी डायरेक्शन में सीजर चलाने में, टाँका लेने में हेल्प करती है। तो वही सर्जरी जो ओपन सर्जरी से की जाती थी वो 5 चीरों से, छोटे छोटे छेदों से हो सकती है और कैंसर का पूरा ऑपरेशन जिस प्रकार से किया जाना था वो उस तरीके से हो पाता है। जहां जहां से प्रिसीजन से हमें जो जो चीजें निकालनी है, साथ में लिम्फ नोड्स निकालनी है, वो हम सब उससे निकाल पाते हैं और ये पूरा ऑपरेशन 5 छेदों से ही हो जाता है। कोई बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो कि गायनेक कैंसर से रिलेटेड
हैं। दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जस्ट मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी कि इसी प्रकार से एक ओवेरियन कैंसर होता है, यानी कि अंडकोश का कैंसर। ओवेरियन कैंसर ज्यादातर फीमेल्स जो हमारे पास आती हैं वो 3rd स्टेज में आती हैं। ये आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें नीचे एक ओवरी का पिक्चर बना हुआ है। ओवरी का ट्यूमर एक खास किस्म का ट्यूमर होता है कि जल्दी ही पेट के अंदर फैल जाता है। पूरे पेट में वो पानी बनाता है और पेट में अंदर चर्बी में और अंदर की लेयर्स में फैल जाता है। पेशेंट को तब तक कोई सिम्टम्स आते नहीं है। काफी पेशेंट्स को लेट ही पता चलता है, जब पूरा पेट में पानी भर जाता है, ट्यूमर फैल जाता है, तब उनको पता चलता है। तो इस प्रकार से 3rd स्टेज में होने के बावजूद इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसमें एक स्पेशल किस्म की सर्जरी की जाती है कि ये पेट के अंदर की जितनी भी बीमारी है वो सारी निकाली जाती है, और बाद में एक प्रकार की कीमोथेरेपी होती है जो कि पेट के अंदर ही चलाई जाती है। ये कीमोथेरेपी नॉर्मल कीमोथेरेपी से ज्यादा अच्छी इसलिए होती है कि ये सीधा कैंसर के ऊपर काम करती है। जैसे कि ये देखा आपने कि अंदर की जो पेट के अंदर जो कैंसर है उसको पहले निकालते हैं और फिर उसके अंदर पेट के अंदर ही कीमोथेरेपी डाल देते हैं। तो जो नॉर्मल कीमोथेरेपी वी गिव इन ब्लड, जो ब्लड में कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके अंदर पेट के अंदर कीमोथेरेपी डालने से 3 फायदे होते हैं। एक तो कीमोथेरेपी अंदर ही अंदर घूमती है तो उसका बॉडी में साइड इफेक्ट कम होता है। दूसरा, इसको हम हाईयर टेम्परेचर पे देते हैं तो उसका एक्शन ज्यादा होता है। ये एक इनलेट से कीमोथेरेपी अंदर डाली जाती है, दूसरे आउटलेट से बाहर निकाली जाती है। ये 1.5 घंटा पेट के अंदर इस प्रकार से घूमती रहती है और वहीं पे कैंसर सेल्स पे सीधा डायरेक्ट एक्शन करके उनको मारती है। तो ये इसे हाइपेक कहा जाता है। तो पेट के अंदर पूरा फैला हुआ कैंसर भी इस प्रकार से इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। गरम कीमोथेरेपी होने के कारण इसका एक्शन ज्यादा मिलता है। ये लेटेस्ट ओवरी कैंसर में एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में था। उसके अलावा मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात करना चाहूंगी। पहले मैं बाकी बात इसलिए मैंने किया क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फिर भी लोग जानते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस कैंसर के बारे में लोग कम बात करना चाहते हैं, उससे फीमेल को ज्यादा शर्म महसूस होती है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं तो अगर जल्दी पता चले तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। अगर आप ये लेफ्ट साइड वाली पिक्चर्स देखें तो इसमें ये जो पिक्चर है ब्रेस्ट निकाली हुई पिक्चर है। पहले नॉर्मल ऐसा होता था, ब्रेस्ट कैंसर जिसका भी हुआ तो पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी, जिसको हम रेडिकल मेस्टेक्टमी बोलते हैं, और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी और रेडिएशन थेरेपी भी देनी पड़ेगी। तो ये एक जनरल पिक्चर होता था दिमाग में। जैसे ही हम सोचते थे ब्रेस्ट कैंसर तो दिमाग में यही आता था कि ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी होगी, बाल उड़ जाएंगे, रेडियोथेरेपी होगी, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, और साइड इफेक्ट में काफी पेशेंट्स के हाथ भी फूल जाते थे। उसके सामने अब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ब्रेस्ट निकालनी नहीं पड़ती है, उसके लिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है। पर हाँ, उसके लिए कैंसर जल्दी पकड़ा जाए तो हमें उससे ज्यादा फायदा मिलता है, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की जाती है। दूसरा, एक्जिला को में मतलब बगल की गांठें कम निकाली जाती हैं, उसे सेंटिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन बोलते हैं, जो कि एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेलेबल है। तीसरा, कीमोथेरेपी से बाल ना उड़े उसके लिए कूल कैप अवेलेबल होती है, जिससे कीमोथेरेपी ब्लड में देने के बाद भी बाल नहीं जाते हैं, पेशेंट के अपने बाल ही बच जाते हैं। तो उनको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो कम होता है, यानी कि पेशेंट का फिजिकल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दोनों ही बच जाता है। तो उसके लिए मेरा कहना यही है कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए हमारे पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो हमें करना चाहिए। हमें हर 3 महीने में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन एवरी ईयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं और इस प्रकार से ट्रीटमेंट करा सकते हैं जिससे फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट को ना हो। साथ में मैमोग्राफी, हर 40 साल से ज्यादा वाली महिला को हर साल एक मैमोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि छोटी गांठ को एक मैमोग्राफी ही पकड़ पाएगी और हो सकता है फिर कीमोथेरेपी की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मेरा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कहना था। लास्ट मेरी स्लाइड पे मैं वही बात कहना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास 3 हथियार हैं। पहला है वैक्सीन, दूसरा पैप्समियर और तीसरा फील फ्री टू रिपोर्ट सिम्टम्स। उसके अलावा नई ट्रीटमेंट जो हमारे लिए अवेलेबल है, यूट्रस कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, जिससे पेशेंट आता है, ऑपरेशन कराता है और दूसरे तीसरे दिन घर चला जाता है।
उसको कैंसर था, कई पेशेंट्स को तो ऐसा मालूम भी नहीं चलता है। दूसरी, ओवेरियन कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास हाईपैक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि 3rd स्टेज के कैंसर से भी लड़ सकती है। दैट इज ऑल। लेट्स डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फीमेल कैंसर। आई थिंक अगर हम सब उसके लिए तैयार हैं, आर्म्ड अप हैं, तो कैंसर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा वेबिनार में आपने क्लास लिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दिया है, बहुत अच्छा है मैडम, वी थैंक यू। અને मैं अभी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको जिसको कोई डाउट है मैडम से, तो इसके बारे में और जानने का, तो कोई इसके लिए आप मैडम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और कोई भी तुमको कुछ और नॉलेज चाहिए तो मैडम से कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं। बाकी आप पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शर्म नहीं रखना चाहिए, जो डाउट क्वेश्चन डाउट आपको पूछना ही चाहिए। क्या प्रताप भाई बराबर है ना? हेलो, इंदुलेखा എന്ത് പറ്റി? हेलो, any doubts या क्वेश्चन अगर आप में से किसी को भी है, they can either approach the doctor right now because she is with us, or you can even drop a mail. जो भी मेल आपको रिसीव हुआ है लॉगिन के वक्त, उसमें एक आईडी दिया हुआ है, so you can get back to us on that as well, अगर आप नहीं चाहते कि ओपनली आपको सवाल पूछना है। करेक्ट। या किसी का कुछ डाउट नहीं है लगता है? कोई कुछ डॉक्टर के सामने कुछ आ रहा नहीं है, हैं? बराबर है। तो इंदुलेखा मैडम ने जो बोला ऐसा ही, जिसको मिलने का तो या मेल से या फोन में संपर्क करो, और शी इज देयर है ना, इंदुलेखा इज देयर, शी कैन हेल्प आउट। या श्योर Those who have attended the webinar or those who have not attended the webinar, we can convey. This is a very good webinar. I appreciate you all. हेलो। Pradap bhai, can I leave? I want to go somewhere. Yeah, but take only 5 minutes so we can conclude it. Nobody wants to doctor convey with the message to doctor. So they will contact the meeting. They will contact through either or mail or phone, and or through Indulekha. Okay. Yeah. Okay. Indulekha. Hello. Yes, Indulekha online. Yes. Yeah. What would be the next program if any doctor is concluding the program, or? So we can have a word of thanks to her. Yeah, sure. Yes. If nobody is want to talk to the doctor, then we can conclude the program. That's the better way. Yeah, I think so. Yes. I also agree with you. Yeah. So this program is very nice, Dr. Mishra. This is very wonderful program. If we can get to that time in a next time when you and you can permit, then we can arrange another program also. So thank you very much for this conducting this program. This Dr. Swadisha and Indulekha and our Secretary
Sri Murali S. Nair and all our members. Thank you very much to coordinate such a program and wonderful. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye.